ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ETT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ETT ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੋਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ETT ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। 6 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹਿੰਦੀ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਰਣ ਵਿਚਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿੰਗ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਿਆ, ਸਰਵਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਔਰ ਕ੍ਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। फिर है पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, नेकार्थ शब्द, नेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी से पंजाबी में अनुवाद। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਲਿਆ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਲਿਪੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ डिस्कस करेंगे। ओके, भाषा शब्द का प्रयोग मानव कंठ से निकलने वाले व्यक्त सार्थक ध्वनियों के लिए किया जाता है। यद्यपि मानव कंठ से खूं खूं, तिक तिक आदि कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, तथापि इन ध्वनियों का या तो कोई अर्थ नहीं होता और यदि होता भी है तो बहुत ही सीमित होता है, अतः इनको भाषा नहीं कहते। किंतु जब मानव कंठ से निकली ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तब वे भाषा के अंतर्गत आती हैं। अतः जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब मतलब मैं आपको शॉर्टली बताऊं, मतलब मैं इसकी आपको व्याख्या एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, कि जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति के हमारे कंठ से अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, हम कहते हैं हाँ, पर वो क्या है कि जब तक उस हमारे कंठ से निकली आवाज़ का कोई अर्थ नहीं होता तब तक वो क्या होती है, हम उसको भाषा नहीं कह सकते। कहने का भाव है कि हम जब बोलते हैं या फिर वैसे ही हम जब बैठे हैं तो हम अपने मुंह से अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं कंठ से, पर वो ध्वनि नहीं, वो भाषा नहीं कहलाती। क्यों भाषा नहीं कहलाती? क्योंकि उस आवाज़ का जब तक कोई अर्थ नहीं होगा तब तक वो भाषा नहीं कहलाएगी। और जब वो हमारे जो कंठ से निकली हुई आवाज़ है, ध्वनि है, वो
अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। मतलब हम वो शब्दों का निर्माण करते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है और फिर हम उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लेती हैं, तो वो भाषा बन जाती है। क्योंकि हम उनके द्वारा अपने भावों को, अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का एक बिल्कुल सरल शब्दों में कहें कि जब जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें, वो ध्वनि ही क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ओके, तो फिर भाषा, ये सबको पता है कि भाषा के दो रूप होते हैं, दो प्रकार की भाषा मानी जाती है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा कि जब हम मुख से, अपने मुंह से अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। ठीक है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। अब मौखिक भाषा की आधारभूत जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि हम जब बोलते हैं कंठ से, तो वो जो कंठ के अंदर से आवाज़ निकलती है उसको ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, वही ध्वनि शब्दों का निर्माण करेगी और वही शब्द आगे जाके वाक्य का आकार लेंगे। ओके, तो फिर इसके बाद दूसरा आगे है कि हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं जिनके परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक रूप वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है कि जब मानव अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर दूसरों के सामने रखता है या लिखकर प्रकट करता है, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई है वो है वर्ण, क्योंकि हम अक्षर लिखेंगे, बोलेंगे ध्वनि, लेकिन लिखेंगे अक्षर। ठीक है, तो वो अक्षर आगे शब्द का निर्माण करेगा, शब्द आगे वाक्य का निर्माण करेगा। ओके, फिर यही जो भाषा होती है, देखो हमारी जो भाषा होती है, भाषा की जैसे एक हमने व्याकरण का कोई भी पार्ट करें, ठीक है, या हम एक चीज़ लें, हम कहें सब्जी, तो सब्जी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, हरी सब्जियां कितनी सारी होती हैं। तो वैसे ही एक भाषा होती है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, आगे उसको हम कई भागों में बांट देते हैं और उन भागों का हम नाम रख देते हैं उपभाषाएं। फिर जो उपभाषाएं होती हैं वो आगे बोलियों में बांटी जाती हैं। ठीक है, भाषा उपभाषा में बंटती है और उपभाषा आगे जाके बोलियों में बंटती है। ओके, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो उपभाषा, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो क्या होती है कि उपभाषा होती है, वो हर 5-10 किलोमीटर पर जाके थोड़ी बहुत बदल जाती है। हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं भाषा हमारी क्या कौन सी है? हिंदी, लेकिन हिंदी को भी बोलने का तरीका अलग अलग होगा सबका। ठीक है, और तो वो जो अलग अलग बोलने का तरीका है वो जब हमारे एरिया वाइज होता है, पंजाब में अलग प्रकार की हिंदी बोली जाएगी, हरियाणा में अलग प्रकार की, तो क्या होगी? उपभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है कि प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर जाकर बोली थोड़ी बहुत बदल जाती है, किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। तो जो एक सेम, फिर भी जो उसका मतलब जैसे पंजाब में अलग हिंदी है, हरियाणा में अलग हिंदी है, लेकिन जो उनके में एक समानता होगी, ठीक है, वो हमें क्या बताएगी? उसकी उपभाषा होने के बारे में। ठीक है, कि हमें एक पहचान दे कि हाँ उसमें ये हिंदी ही है, लेकिन हिंदी का अलग रूप है ये, तो वो उपभाषा कहलाएगी। और इसमें क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई हरियाणवी में साहित्य लिख रहा है, ठीक है, कोई क्या जैसे इसकी है हमारी ब्रज भाषा है हिंदी की, उसमें साहित्य कर रहा है, कोई अवधी में कर रहा है, तो लेकिन है तो वो सारे हिंदी के ही रूप। फिर क्या है कि जो बोली होती है वो तो बिल्कुल ही उसमें हम अपनी सरलता के अनुसार, ठीक है, कि हम आसानी से जिस शब्द को बोल सके हम वो शब्द अपनी भाषा में फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो बोली बन जाती है। जब हम हमारे अपने कुछ शब्द उस भाषा के अंदर ऐड हो जाते हैं तो वो बोली बन जाती है। तो ये बोलियां हैं, ये तो हर 5-10 किलोमीटर पर जाकर चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। बोली के बारे में लिखा है कि किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप स्थानीय होता है, तो इसी रूप को बोली कहते हैं। कि एक स्थान पर जो हमारी बात कहने का, बोलने का जो एक विशेष बोलने की एक विशेष भाषा होती है, वो भाषा ही
एक बोली बन जाती है, ठीक है, स्थान विशेष के ऊपर। हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, 5, ओके, 5 हैं, लेकिन जो उसके अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो उनके अपने अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, क्योंकि किसी उपभाषा के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, वो हम देखते हैं कि इस उपभाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा हिंदी, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, देखो अब हम मतलब करेंगे कि हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं और उसकी जो बोलियां हैं, तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, हम पहले वो देखते हैं। खड़ी बोली आती है, उसका दूसरा नाम कौरवी है, और ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। और ये 5 बोलियां किस उपभाषा के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर दूसरा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरे नंबर पे है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 जो बोलियां हैं, जयपुरी, जिसका दूसरा ढूंढानी है, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ठीक है। चौथा है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, सिर्फ 2 जो बोलियां हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में अलग बोली जाती है, और जो मिडल है जो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। फिर बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 बोलियां हैं, ठीक है। फिर ये तो हमारा भाषा का टॉपिक है, वो कवर हो गया कि भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप हैं, मौखिक भाषा की इकाई कौन सी है, लिखित भाषा की इकाई कौन सी है, या हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, और भाषाओं की कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें से बनेंगे। और आगे है लिपि। जैसे हम कहते हैं कि मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है, कि मौखिक भाषा का आधार क्या है, ध्वनि। तो हम क्या करते हैं, हम जब बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, वे तो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं। हम अपने मुख से बोलते हैं और हम सिर्फ अपने मुख से ध्वनि को प्रकट कर सकते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, ये सबको पता है। जब हम लिखते हैं कि जो हम अक्षर लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई आकार होता है, तो वो जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं, मतलब ध्वनि चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या, वस्तुतः लिपि किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखने का सुव्यवस्थित तरीका है, मतलब एक बना बनाया, व्यवस्थित किया हुआ, उसका सही रूप बनाया हुआ एक तरीका है कि हमने ऐसे ही लिखना है। हमने क है तो क हम कैसे, हमने क ही लिखना है, उसको ख जैसा नहीं बनाना, ओके। तो अतः मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हम अपने ध्वनि बोली तो ध्वनि को प्रकट करना है, दूसरों के सामने रखना है कि हमने क बोला है तो क जैसा आकार का हम एक अक्षर लिख देंगे, ओके, तो वो लिपि कहलाएगा, वो चिन्ह लिपि कहलाएगा, ओके। तो आप क्या देख सकते हैं, हमारी दुनिया में कितनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, कितनी सारी भाषाएं। तो उनको लिखने के लिए उनकी सबकी अलग अलग लिपियां होती हैं, मतलब अलग अलग चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये उर्दू है, ये फ़ारसी है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। तो हम मतलब कुछ लिपियों के बारे में, कुछ भाषा और उसकी लिपि के बारे में देखते हैं। जैसे हिंदी की लिपि पूछ लेते हैं कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। दूसरा, हम पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बट मैं वैसे ही बता देती हूँ। इंग्लिश की रोमन है। तो देवनागरी, गुरमुखी और रोमन लिपियाँ ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि लेफ़्ट टू राइट, देवनागरी लिपि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, ओके, बाईं से दाईं ओर, ये आप ध्यान रखिएगा। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। ये टॉपिक जो हैं ये कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि ये ज़्यादा बड़े, इतने बड़े नहीं हैं, बस आप आराम से वीडियो के द्वारा इस सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो आपके दोस्त मित्र ETT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हिंदी की तैयारी करने में इंटरेस्ट है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।
और ये हमारा पहला आज का टॉपिक था भाषा और लिपि। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।